So this is 30 December 2025 and just a minute. Better. So back again studying medicine, revising actually. So let's go. Let's start from disorders of adrenal gland. Okay, let's do it. So adrenal gland, it is asymmetrical in shape. Okay, one is triangular and one is pyramidal. And there is cortex and medulla. Cortex meaning there is GFR, glomerulosa, fasciculata, and reticularis, and the is medulla. Okay. Then the layers of adrenal gland, then zona glomerulosa. It is responsible for synthesis of aldosterone, which is regulated by RAS, renin, angiotensin, aldosterone system. In aldosterone, the receptors are on the kidney, that is receptor and ENaC, epithelial sodium channels located in the collecting duct. So ENaC is epithelial sodium channels which is located on, yes, the main function is postural regulation of blood pressure and mechanism is absorption of salt and water. And there is excretion of potassium and hydrogen also. Then there is zona fasciculata, which is responsible for the release of cortisol. Okay. G is glomerulosa, aldosterone fasciculata, there is release of cortisol. Cortisol, it is a stress hormone which regulates the blood sugar level. Hypercortisolism, it increases the blood sugar level and it increases impaired glucose tolerance. And zona reticularis is responsible for production of sex steroids like DS, that is dihydroepiandrosterone sulfate, responsible for secondary sexual characters. Okay, the glomerulosa is for aldosterone, fasciculata is for cortisol, stress hormone, regulate blood sugar level, and then reticularis is for sex steroids, that is DS. Then medulla, it synthesizes and releases catecholamines, that is epinephrine, norepinephrine, and dopamine. तो medulla जो है वो catecholamine secrete करता है, that is epinephrine, norepinephrine और डोपामिन. तो मेजर सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइन जो है वो एपिनेफ्रिन होता है, दैट इज 60%. एंड मोस्ट ऑफ द फियोसाइटोक्रोमास दे प्रोड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन. तो मेजर सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइन पूछा देन इट इज एपिनेफ्रिन, बट फियोक्रोमोसाइटोमा व्हिच इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसमें मेडुला का होता है ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, उसमें मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन इज नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है. कैटेकोलामाइन्स आर रिस्पांसिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पांस. अमीनो एसिड रिस्पांसिबल इन सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन इज टायरोसिन, आल्सो 43 and T4. VMA, दैट इज वेनिल मैंडेलिक एसिड, इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. तो मेटाबॉलिज्म अगर करेंगे कैटेकोलामाइन, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का, तो वेनिल मैंडेलिक एसिड दिखेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ डोपामिन मेटाबॉलिज्म इज होमोवैलमिक एसिड. So important information is 24 hours valine mandelic acid is increased in neuroblastoma and ACTH it acts on the second and third layer. Adrenocortical trophic hormone सिग्नल ट्रांसलेट सेकंड लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. देन देयर इज हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, दैट इज फर्स्ट लेयर सीक्रेट करता है अल्डोस्टेरोन, ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है. सो दिस प्राइमरी होता है, सेकेंडरी है. प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज, 90% होता है. देन देयर इज कॉन सिंड्रोम, एड्रिनल एडिनोमा ट्यूमर इन द फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में होता है. देन सेकेंडरी में देयर सिरोसिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी है, मैसिव असाइटिस, देयर इज डिक्रीज सर्कुलेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज इन GFR, देयर इज पॉजिटिव स्टिमुलेशन टू RAS, एंड देयर इज सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म. एंड अदर्स इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बैटर किटलमैन सिंड्रोम. ठीक है. नाउ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म इज इंक्रीजिंग अल्डोस्टेरोन हो गया तो स्टिमुलेट करता है एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को. तो देयर इज इंक्रीज इन सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन. So there is increase in sodium absorption and water absorption. Then there is expansion of plasma volume. तो there is enhanced urinary loss of potassium and hydrogen ions. तो increased sodium and water absorption से headache है, due to hypertension resistant headache होता है. Then urinary loss of potassium or hydrogen ion is hypokalemic alkalosis, result in muscle cramps with weakness and more salt and water in body. It causes increase in preload. Polyuria होता है due to atrial natriuretic factor, and then there is polydipsia, that is what intake more than 6 liters per day. Then उसका right atrium dilatation में atrial natriuretic factor release होता है, then that causes natriuresis, and then there is no pedal edema, since gain of water leads to loss of water. Resistant hypertension is a patient so sleepy. The resistant hypertension is patient on more than 3 classes of antihypertensive medication which must include thiazide diuretic, and still BP is not under control. And most common cause of resistant hypertension is non-compliance होता है. Then वर्कअप में सोडियम लेवल्स जो है वो इंक्रीज या नॉर्मल होते हैं, पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा. Whatever potassium have an inverse relation in the presence of aldosterone. An unenhanced CT or NCCT abdomen में bilateral adrenal hyperplasia या फिर ट्यूमर होता है. Increased aldosterone renin ratio है, which is a best screening test. Then increased aldosterone causes negative feedback. Investigation of choice hyperaldosteronism प्राइमरी में saline infusion test है या फिर salt chlorine test. So ये saline infusion test और salt chlorine test. ट्रीटमेंट में there is BAH bilateral adrenal hyperplasia कर सकते हैं. तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जो है वो spironolactone के साथ देना है. साइड इफेक्ट इस कैलकुलस के मिल में हो सकता है. अगर हो रहा है then alternate drug is eplerenone for males. So कौन syndrome initially spironolactone is given for 4 to 6 weeks के लिए. Potassium sparing diuretic, it manages both hypertension and hypokalemia. And post pre-anesthetic checkup fitness में surgery में unilateral laparoscopic adrenalectomy है, which is a definitive treatment. तो unilateral laparoscopic adrenalectomy. So adrenal vein sampling is done to localize the tumor before surgery, and there is incidence of osteoporosis, type 2 diabetes mellitus, hyperaldosteronism में ज़्यादा होता है. Increased cortisol will cause Cushing syndrome, which is Cushing syndrome होता है. And there is Liddle syndrome है, inheritance. Okay, autosomal dominant है. तो Liddle syndrome autosomal dominant है. Autosomal dominant. Very nice. Sunlight will come here. I'm waiting for that. Then there is ENaC, epithelial sodium channel. It defect exhibits gain of function होता है. So pathophysiology में there is gain of function causes loss of potassium and hydrogen ion and salt and water. It come back in. जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस है, देयर इज नेगेटिव फीडबैक टू RAS, renin decreases, aldosterone decreases.
सो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें जो है अल्ट्रासाउंड रेशियो नॉर्मल रहता है बिकॉज दोनों डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लिटिल सिंड्रोम में रेनिन भी डिक्रीज हो रहा है, अल्ट्रासाउंड भी डिक्रीज हो रहा है, देन देयर इज हाइपोकैलेमिकल ग्लोसिस है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एमिलोराइड है, इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ ओवरएक्टिव सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ठीक है। देन देयर इज गॉर्डन सिंड्रोम है व्हिच अफेक्ट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है इसमें, तो गेन ऑफ फंक्शन कॉजेस इंक्रीज इन सोडियम एंड वाटर, ठीक है। तो हाइपरटेंशन एंड हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, तो गॉर्डन सिंड्रोम में हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस होता है, वहाँ पे हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस था लिटिल सिंड्रोम में, यानी गॉर्डन है। देन हाइड्रोजन आयन आर रिटेन ड्यू टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी फंक्शन ऑफ द किडनी का होता है। तो देख कॉर्न सिंड्रोम एंड लिटिल सिंड्रोम में हाइपरटेंशन तो है एंड हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस है, एंड गॉर्डन सिंड्रोम में हाइपरटेंशन है एंड हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस है, ठीक है। In little syndrome, aldosterone levels are decreased due to the feedback mechanism, but hypertension occurs due to excess salt and water in the body, which is secondary to excess activity of the epithelial sodium channels. Then there is Addison's disease. तो उसमें autoimmune destruction of the gland होता है Addison's disease में. So autoimmune polyglandular syndrome type 1. तो Addison's disease में क्या हो रहा है कि autoimmune destruction of adrenal gland हो रहा है. Then there is autoimmune polyglandular syndrome type 1. Hypoparathyroidism, mucocutaneous candidiasis, isolated autoimmune adrenalitis. So it can be also known as isolated autoimmune adrenalitis. मिसलेनियस कॉजेज कैन बी टीबी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, सार्कोइडोसिस है, एडिसोनियन क्राइसिस, वॉटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, and meningitis causes sepsis and DSE. Sudden stoppage of steroids can cause Addisonian crisis, and there is adrenoleukodystrophy. Then clinical features में there is decreased aldosterone, it result in aldosterone decrease हो गया, ठीक है। तो उसमें सॉल्ट वेस्टिंग या फिर क्रेविंग होता है, then there is polyuria, पोस्चरल हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ बेस विल न्यूट्रलाइज मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपोनेंट, there is weight loss and fatigue होता है, there is decreased cortisol result in hypoglycemic attack होता है। हाइपरनेट्रीमिया क्यों हो रहा है? बिकॉज इज लॉस ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर वेसोप्रेसिन। तो लॉस ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर वेसोप्रेसिन व्हाट अगेन इट लीड्स टू हाइपरनेट्रीमिया। देन इओसिनोफिलिया है, इंक्रीज इन ईसीटीएच, इट लीड्स टू पार्शियल मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक एक्शन रिजल्टिंग इन हाइपरपिगमेंटेशन ओवर एरियाज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो डिक्रीज कॉर्टिसोल से हाइपरपिगमेंटेशन है ओवर द एरियाज ऑफ फ्रिक्शन, एंड हाइपरनेट्रीमिया इज ड्यू टू लॉस ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर वेसोप्रेसिन। तो एरियाज ऑफ फ्रिक्शन इज नकल्स है, आर्म्स है, क्रीजेस ओवर द स्कार्स, scars, areola, axilla, cubital fossa, groin area, oral mucosa, nails. Then loss of sex steroids results in loss of libido, erectile dysfunction, loss of pubic hair and axillary hair in female. I again only slept for less than 6 hours, maybe 5 hours, 40 or 50 minutes. And I woke up at 5:30. And it's currently 9 o'clock and I'm so sleepy. I will take a nap after this. Then workup, investigation of choice देख लेना है, ACTH stimulation test है, which is co-syntropin test. Normally ACTH it raises cortisol leading to raised blood sugar, but in this disease there is no raise in blood sugar levels. ACTH stimulation test. Then treatment में drug of choice is hypercortisol orally, and Addison's crisis में there is IV hydrocortisol. For management of low BP में there is फ्लूरोकॉर्टिसोल इज गिवन। देन उसके बाद बहुत फ्लॉप सा कुछ भी दिया, शीनन सिंड्रोम और हाइपोथैलेमस डैमेज। शीनन सिंड्रोम में ओह माय गॉड आई लव दिस टू। ओके नाउ आई कैन बी स्टडी फॉर मी टाइम। ओके तो शीनन सिंड्रोम में देयर इज पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो रहा है followed by PTH, तो डिक्रीज कॉर्टिसोल है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, एंड देन देयर इज सेकेंडरी एडिसन्स डिसीज है, एंड नो हाइपरपिगमेंटेशन एज ACTH लेवल्स आर लो। ट्रीटमेंट में डेक्सामेथासोन है, एंड हाइपोथैलेमस डैमेज में देयर आल्सो डैमेज हाइपोथैलेमस है, इसमें लो ACTH, लो कॉर्टिसोल, एंड इसमें देयर इज टर्शियरी एडिसन्स डिसीज होता है, तो इस टर्शियरी एडिसन्स डिसीज एंड अगेन इसमें डेक्सामेथासोन डेक्सामेथासोन। समरी करते हैं कि देयर इज एडिसन डिसीज में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी है, प्राइमरी में ऑटोइम्यून कॉज है, सेकेंडरी में पिट्यूटरी डैमेज है, ऑब्स्टेटिक कॉज है शीनन सिंड्रोम, नॉन ऑब्स्टेटिक कॉज है साइमन सिंड्रोम और साइमन, और टर्शियरी में देयर हाइपोथैलेमस का डैमेज है। फिर ACTH जो है सिर्फ ऑटोइम्यून में इंक्रीज हो जाता है, बाकी दोनों में डिक्रीज है। हाइपरपिगमेंटेशन इज प्रेजेंट ओनली इन ऑटोइम्यून, दोनों में एब्सेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड डेक्सामेथासोन। फिर कॉर्न सिंड्रोम वर्सेस एडिसन्स डिसीज, तो देख एडिसन्स डिसीज में जो है वो कॉर्टेक्स में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो देयर इज डिक्रीज इन लेवल्स ऑफ अल्डोस्टेरोन, सो डिक्रीज इन लेवल्स ऑफ अल्डोस्टेरोन, एंड कॉर्न सिंड्रोम में देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ अल्डोस्टेरोन। कॉज यहाँ पे ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे ट्यूमर है, PP डिक्रीज्ड, यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम एंड हाइड्रोजन लेवल एडिसन्स डिसीज में इंक्रीज होता है, कॉर्न सिंड्रोम में डिक्रीज है। स्पेशल इज पेडल एडिमा इज एब्सेंट इन कॉर्न सिंड्रोम, यहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो कॉर्न सिंड्रोम में स्पेशल फीचर इज पेडल एडिमा इज एब्सेंट, और यहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन इज प्रेजेंट ओवर द एरिया ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नकल्स बाउंस क्रीजेस। इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एडिसन डिसीज में ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, तो या फिर उसको को-सिंट्रोपिन टेस्ट भी कहते हैं। तो एडिसन डिसीज में ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट और को-सिंट्रोपिन टेस्ट, एंड कॉर्न सिंड्रोम में सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट और सॉल्ट लोडिंग टेस्ट, कॉर्न सिंड्रोम में सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट और सॉल्ट लोडिंग टेस्ट। फिर ट्रीटमेंट में यहाँ पे लाइफ लॉन्ग स्पाइनोलैक्टोन देना है, यहाँ पे डिसाइड्रोकोर्टिसोन। फिर फ्यू क्रोमासाइटोसिस क्रोमाफिनोमा, तो उसको सो नोन एज क्रोमाफिनोमा, एंड क्रोमाफिन सेल्स आर फाउंड इन एड्रिनल मेडुला और सिम्पैथेटिक गैंग्लियन।
गैंग्लिया में भी होता है, जिस पैरावर्टिकली लोकेटेड एंड कैटेकोलामाइन इट प्रोड्यूसेस नॉरएपिनेफ्रिन 80% एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। तो देखा था आपने कि नॉर्मल जो एपिनेफ्रिन ज़्यादा होता है 60% ऑफ द टाइम, बट फियोक्रोमोसाइटोमा में जो है नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होता है, देन देस एपिनेफ्रिन एंड देन देस डोपामाइन। ठीक, सो 80% तक जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन होता है। सो इट प्रोड्यूसेस एपिनेफ्रिन इफ एसोसिएटेड विद मेन टू ए टाइप ऑफ सिकल सिंड्रोम। देन बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट दोनों के हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हमारा एब्डोमेन करना है, बायोप्सी इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज इट मे लीड टू डैमेज टू नॉर्मल लेयर्स ऑफ द ग्लैंड में हो सकता है। लोकेशन 50% ऑफ द ट्यूमर एक्स्ट्रा एड्रिनल होते हैं ट्यूमर्स, दे कुड बी डीप सीटेड इन द मेडुला 85% ऑफ द केसेस में उसमें। एंड ट्यूमर इट कुड बी इनसाइड द सिंपैथेटिक गैंग्लियन, 50% एग्जांपल इज ऑर्गन ऑफ सुगर कैंडल में हो सकता है। इमेजिंग में हमारा एब्डोमेन बेस्ट मोडालिटी है। देन एमबिग इज मेटा आइडोबेंजील क्वानिडीन स्कैन और पेट डोपा। It is done for adrenal pheochromocytoma if MRI abdomen is normal, but biochemical evidence is present. So there is familial basis of pheochromocytoma men type 2 syndrome, that is sickle syndrome. So men type 2 sickle syndrome उसमें PPM pheochromocytoma parathyroid adenoma recurrent kidney stones हो रहा है, then there is medullary carcinoma of thyroid. तो pheochromocytoma parathyroid adenoma है, then there is medullary carcinoma of thyroid due to red proto-oncogene, which is a defect in chromosome number 10, and management is again इसमें भी lifelong treatment with spironolactone है. Side effect is gynecomastia in males है, and alternate drug is eplerenone for males. तो कौन सी नॉर्मल लेगा ना क्या ये हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में स्पाइरोलैक्टोन, तो प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, देन एपिडेमियोलॉजिकली रूल ऑफ 10, बट 15 भी आता है उसमें, दैट इज 15% एक्स्ट्रा एड्रिनल है, 10% ट्यूमर मैलिग्नेंट होते हैं, 10% बायलैटरल है, 10% फैमिलियल है, ड्यू टू प्रोटोऑन्कोजीन। एंड पैरागैंग्लियोमा प्रेजेंट एट स्कल बेस ऑन नेक, डू नॉट यूज। So this is for pheochromocytoma only, no? I need a pan. It's glamine and it's good for health. At least my health. Can you see the tuba? My target is मेरे को एनेस्थेशिया घर जाने से पहले कंप्लीट करना है। And please God let me go home and come back. तो लार्ज साइन होता है उसमें, which is seen in paraganglioma, carotid body tumor और कीमोडेक्टोमा। तो नेस्ट ऑफ जेलिन बैलिन अपीयरेंस होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। कार्सिनोइड सिंड्रोम को अजेंटा फिनोमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा दिखते हैं कि एक्सेस ऑफ कैटेकोलामाइन का कॉज इज एक्सेस एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 से देयर इज इंक्रीज हार्ट रेट एंड पाल्पिटेशंस, एंड बीटा 2 में देयर इज फाइन ट्रेमर्स इन द फिंगर्स होता है, डायफरेसिस है, दैट इज एक्सेसिव स्वेटिंग है, स्वेटी पाम्स एंड सोल्स होता है उस वजह से। एंड उसके बाद अल्फा 1 स्टिमुलेशन से देयर इज वेसोकंस्ट्रिक्शन है। हाइपरटेंशन इज एपिसोडिक हाइपरटेंशन दिखता है और व्हिच इज नोन एज पैरोक्सिस्मल। एंड कैटेकोलामाइन्स दे हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड हेंस बीपी कैन बी इंक्रीज फॉर a few hours or minutes initially, but it can be triggered by position change, pregnancy, urination, headache. And then there is base mascurator. There is great mascurator that is tied to suspect but not confirmatory pneumonitis, PHD, palpitation, headache and diaphoresis. So palpitation, headache, hypertension and diaphoresis pheochromocytoma में होता है। So conditions could be misdiagnosed as anxiety neurosis is fasting blood sugar level 100 to 125 है, but 2 hours PP value 140 to 199 है, मतलब pre-diabetic है, that's impaired glucose tolerance होता है उसमें। Then weight loss है, then extreme vasoconstriction, volume contracted state can lead to postural hypertension, there is relative polycythemia है, falsely increased calcium and increased hematocrit due to volume contracted state. Then workup में plasma fractionated metanephrine level। MRI abdomen overall best modality है, सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में तो बिनाइन में जो है वो पार्शियल और टोटल एडेनेक्टोमी कर सकते हैं, मेडिकली स्टेबलाइज द पेशेंट एंड देन डू द सर्जरी। एंड फॉर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट गिव नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर व्हिच इज ओरल फिनॉक्सीबेंजामाइन, बेस्ट फॉर प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन मैनेजमेंट कंट्रोल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो अल्फा ब्लॉकर दे देना है, दैट इज फिनॉक्सीबेंजामाइन। एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोल कंट्रोल करता है पैल्पिटेशन सिम्टम में पोस्ट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में अर्ली मॉर्निंग अल्फा ब्लॉकर एंड देन पोस्ट ब्रेकफास्ट जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देना है, दैट इज प्रोपेनोल। एंड अर्ली मॉर्निंग अल्फा ब्लॉकर इज फिनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक है। तो अल्फा ब्लॉकर शुड ऑलवेज बी गिवन बिफोर बीटा ब्लॉकर, दैट इज अल्फा बीटा देना है। इफ बीटा ब्लॉकर इज गिवन बिफोर एन अल्फा ब्लॉकर देन एंडोजेनस वेसोडाइलेशन ब्लॉक हो जाएगा, अनअपोज्ड अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेशन कॉजेस वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग इन सीवियर हाइपरटेंशन, इट मे रिजल्ट इन सीएनएस ब्लीड और हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। तो बीटा प्लस अल्फा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। देन इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंशन क्राइसिस हो गया, दैट इज फीवर मैनिपुलेशन कॉजेस स्पाइक्स इन द लेवल ऑफ कैटेकोलामाइन्स, एंड ट्रीट कर देना है इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन से या फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से भी कर सकते हैं। अल्टरनेट अप्रोचेस प्री ऑप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी और आईएम पेंडोलामीन। देन देयर इज कार्सिनोइड ट्यूमर एंड फियोक्रोमोसाइटोमा में डिफरेंस है। कार्सिनोइड ट्यूमर में सीरोटोनिन डेरिवेटिव एक्सेस हो गया है, तो कार्सिनोइड सिंड्रोम में देयर इज स्लिप्स, ट्राइकास्पिड इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी स्टेनोसिस।
ऑक्टेरोटाइड है, फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड सोडियम नाइट्रोक्साइड, फिनॉक्सीबेंजामाइन। कशिंग सिंड्रोम करना है अभी। मैंने 13 तक कर दिया है। आज 30 है ना, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। So towards the beginning, it is apparently very छोटू। ठीक है, I'll watch a video.